नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला कांग्रेस ने एक दिवसीय मौन धरना दिया और रात में बारिश के कारण एक मकान के 2 कमरे ढह गए, परिवार सुरक्षित। विपक्षी भाजपा ने जैन मुनि हत्या मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ट्रांसफर बिजनेस टिप्पणी पर कर्नाटका विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच झड़प। टेक फर्म के सीईओ एमडी की कथित तौर पर पूर्व कर्मचारी ने की हत्या। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। राहुल गांधी के राजनीतिक करियर को खत्म करने की भाजपा सरकार की कथित साजिश के खिलाफ 12 जुलाई को मौन विरोध प्रदर्शन राज्य भर में किया गया। इसी के तहत आज बीदर शहर में बीदर जिला कांग्रेस समिति द्वारा जिला अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी के नेतृत्व में शहर के अम्बेडकर चौक के समीप आईबी के सम्मुख सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मौन विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर एमएलसी चंद्रशेखर पाटिल, पूर्व सांसद नरसिंह राव सूर्यवंशी, पूर्व विधायक राजशेखर पाटिल, मन्नान सेठ, इरशाद पहलवान, मोहम्मद समी, दत्तात्री सहित कांग्रेस के नेता आदि उपस्थित रहे। आज प्रदर्शन के समापन के बाद जिला अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी, पूर्व विधायक राजशेखर पाटिल सहित अन्य ने मीडिया से बात की। कैमरामैन संतोष का कवरेज। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಜಿ ಅವರೇ, ಇನ್ನೋರ್ವ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರಾದ ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಜಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಜಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಮೃತರಾವ್ ಚಿಮ್ಕೋಡೆ ಅವರೇ, ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರೇ, ದಸರಥ್ ದೊಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳೇ, ಈ ಎಲ್ಲ ಮುಂಚೂಣಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮಿತ್ರರೇ, ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮಿತ್ರರೇ, ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆರಂಭವಾಗಿ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಏನದ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಂದರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಸದಸ್ಯತ್ವ, ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಹುನ್ನಾರ ಈ BJPಯವರೇನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಇವತ್ತೇನದಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಖಂಡನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನದಂದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ। ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಏನದ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ। ಇದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು BJPದವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು, ಅವರು ಕೂಡ ಏನದ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಾರು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕೆಲಸಗಳೇನದ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರುವ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿದೆ। ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವತ್ತೇನದಂದ್ರೆ MPಗಳ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನದ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವು ಮಾಡಬಹುದು, ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ನಾವು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಖಂಡರು, ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂಥದ್ದು ಅವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸದಸ್ಯತ್ವ, ಅದಕ್ಕೇನದ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹುನ್ನಾರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ತ್ರಾಸು ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನದ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ। ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಮುಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪುನಃ ನಾವು ಏನದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇವತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಇವತ್ತು देशದಲ್ಲಿ बहुत लोग ऐसे स्टेटमेंट दिए, लेकिन आज तक किसी का भी सदस्यत्व रद्द नहीं किए, खाली राहुल गांधी का ही क्यों किए ये मुद्दा उठ रहा। ये बीजेपी वाले होना बोलकर जो राहुल जी का जो भारत जोड़ो कार्यक्रम होगा, आप देखें कन्याकुमारी से कश्मीर तक बहुत ही सुंदर से ये कार्यक्रम होगा। उसके बाद ये जो उन्होंने
भारतीय जनता पार्टी वाले उद्देश्यपूर्वक ये काम उन्होंने किए। आज मोदी सरकार, प्रधानमंत्री जी, आज जो राहुल गांधी जी को ये जो सदस्यत्व अनर्ह किए, आज भी हमारे नेता बोल रहे मेरा सदस्यत्व अनर्ह किए तो भी मैं कोई डरने वाला नहीं, मैं देश के वास्ते मैं काम करूंगा। मैं एमपी रहने दो, एमपी नहीं रहने दो, लेकिन मैं लोगों के साथ रहूंगा। आपको राहुल गांधी ने बताया। आज मैं यही बोलना चाहता हूं, आज सभी स्टेट भर हम लोग यहाँ पर ये जो मौन आचरण करें, आज आप लोग यही बोलना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है केंद्र में, अभी बार बार बोलते थे डबल इंजन सरकार, डबल इंजन सरकार, अभी तो एक इंजन चले गया, अभी एक इंजन रह गया। अभी वो भी इंजन आगे आने वाले दिनों में देखेंगे क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं। वो पूरे देश के लोग उसके बारे में निर्णय लेंगे। औराद तालुका में पिछले 2-3 दिनों से मूसलाधार बारिश होने से औराद के एक ग्राम में एक मकान के 2 कमरे बारिश के कारण ढह गए हैं। प्राप्त सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि बीती रात लगभग 2 बजे जब बारिश का सिलसिला जारी था, तब एक मकान जिसमें मां बाप सहित 2 मासूम बच्चे रहते थे, उस मकान के 2 कमरे बारिश के कारण ढह गए। इस दुर्घटना में परिवार सुरक्षित बच गया है, लेकिन परिवार सदमे में रहने की बात कही जा रही है। परिवार के सदस्यों का कहना है कि कई साल मजदूरी करने के बाद उन्होंने यह मकान बनाया था, जो अब बारिश के कारण ढह गया है। वह सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन संतोष का कवरेज। मनी 6:30 ಕಂಗ್ ಬಿದ್ದದ್ರಿ। ನಮ್ಮ ಸೊಸೆಯವರು ನಮ್ಮ ಮಗವರೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಇದ್ರಿ। ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಜರ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗ್ಯದ, ಸೊಸೆಯವ್ರಿಗೆ ಬಿ ಹತ್ತದ್ರಿ ಹೊಟ್ಲೆರ। ಒಟ್ಟು ರಾಸನ್ ಪಾನಿ ತೆಕ್ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಹೊಂಟದ್ರಿ। ನಮ್ದು ತೋಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಖರಾಬ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ। ರಾತ್ರಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಕುಂತಿದ್ದೇವ್ರಿ, ಮಳೆ ಹೊಂಟ್ರಿ। ಉಳ್ಳಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ರಿ ನಮ್ಗೆ, ಗಂಗಾಳ ಬಿ ತೆಕ್ಕೊಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಹೊಂಟದ, ಭವಾನಿ ಬಿ ತೆಕ್ಕೊಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಹೊಂಟದ್ರಿ। ಒಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ಏನೂನೇ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಹೋಗ್ಯಾದ ನೋಡ್ರಿ, ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಕುಂತಿದ್ದೇವ್ರಿ। अब समाचार राज्य के। बेलगावी में जैन भिक्षु आचार्य श्री कामकुमार नंदी महाराज की नृशंस हत्या के खिलाफ विपक्षी भाजपा विधायकों ने बुधवार को विधानसौधा में गांधी प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में विधायक प्रतिमा के पास बैठे और राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के खिलाफ नारे लगाए। भाजपा ने कहा कि मई में जब से कांग्रेस सत्ता में आई है, हिंदू हस्तियों की हत्याओं का एक और दौर शुरू हो गया है और जैन भिक्षु की हत्या इसका ज्वलंत उदाहरण है। विपक्षी दल ने इस हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की जरूरत बताते हुए इसकी सीबीआई जांच की मांग की है। बेलगावी जिले के चिक्कोड़ी तालुका के हिरेकोड़ी में एक मठ के प्रमुख जैन भिक्षु को टुकड़ों में काट दिया गया और उनके शरीर के टुकड़ों को एक निष्क्रिय बोरवेल में फेंक दिया गया। मामले में 2 लोग नारायण बसप्पा माड़ी और हसन दलायत को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस को हत्या के पीछे पैसे से जुड़ा मामला होने का संदेह है। पूर्व मंत्री आर अशोक, वी सुनील कुमार, डॉक्टर सीएन अश्वथ नारायण और कई अन्य लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। बाद में उन्होंने राज्यपाल थावरचंद गहलोत को ज्ञापन सौंपने के लिए राजभवन की ओर मार्च निकाला। सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के सदस्यों ने सरकार में अधिकारियों के तबादले को लेकर विधानसभा में हंगामा किया, जिसे उन्होंने व्यवसाय करार दिया। सदस्यों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, जिससे अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए भाजपा विधायक बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार तबादलों को व्यवसाय बना रही है। विजयपुरा निगम में एक ऐसे व्यक्ति को आयुक्त बनाया गया है जो आईएएस या केएस अधिकारी नहीं है, जो उच्च न्यायालय के आदेश के साथ साथ केएटी आदेश का भी उल्लंघन है। ऐसा लगता है कि सरकार अयोग्य उम्मीदवारों को नियुक्त करके व्यवसाय कर रही है। इससे नाराज होकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार समेत कांग्रेस सदस्यों ने यत्नाल पर पलटवार किया। सीएम जानना चाहते थे कि यत्नाल शून्यकाल में बहस क्यों कर रहे हैं। बीरती सुरेश ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यत्नाल जैसे वरिष्ठ सदस्य इस तरह से बोल रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि यत्नाल जो विजयपुरा से हैं, उनके साथ कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं। शिव कुमार ने कहा कि उन्हें पता है कि बीजेपी सरकार के दौरान क्या रेट तय हुआ था। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि बीजेपी सरकार में सीएम पद की कीमत 2400 करोड़ रुपए थी और मंत्री बनने के लिए कुछ 100 करोड़ रुपए। उन्होंने यत्नाल को एक वचन में संबोधित करते हुए कहा कि वह उनका इतिहास जानते हैं, जिससे सदन में और अधिक अराजकता पैदा हो गई है। भाजपा विधायक माफी की मांग करते हुए सदन के वेल में आ गए। सिद्धरामैया जानना चाहते थे कि एक व्यक्ति के तबादले पर इतने सारे भाजपा विधायक क्यों नाराज हैं। बाद में सदन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और कामकाज फिर से शुरू होने पर मंत्री सुरेश ने कहा कि वह इस पर गौर करेंगे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध है। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। बेंगलुरु में एक टेक कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ और प्रबंधक निदेशक एमडी की मंगलवार 11 जुलाई को कथित तौर पर एक पूर्व कर्मचारी द्वारा हत्या कर दी गई, जिसने कथित तौर पर उनके कार्यालय में घुसकर उन पर तलवार से हमला किया था। मृतकों की पहचान एरोनिक्स इंटरनेट कंपनी के सीईओ वीनू कुमार और कंपनी के प्रबंध निदेशक फणींद्र सुब्रमण्यम के रूप में की गई है। अस्पताल ले जाते समय दोनों ने दम तोड़ दिया और रिपोर्ट्स के अनुसार फेलिक्स नाम से जाना जाने वाला एक पूर्व कर्मचारी इस मामले में मुख्य संदिग्ध है। उत्तर पूर्व बेंगलुरु के पुलिस उपायुक्त लक्ष्मी प्रसाद ने कहा कि फेलिक्स घटना के बाद से फरार है और उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने कहा कि 3 लोग शामिल करीब 4 बजे अमृतहल्ली के पंपा एक्सटेंशन में एक आवासीय संपत्ति में स्थित कार्यालय में घुस गए। फणींद्र सहित लगभग 10 लोग कार्यालय में थे, जिन्होंने नवंबर 2022 में ब्रॉडबैंड कंपनी शुरू की थी। तीनों व्यक्तियों ने फणींद्र पर हमला किया और जब वीनू कुमार ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उन पर भी हमला किया। पुलिस ने यह भी कहा कि 3 लोग पीछे के प्रवेश द्वार से इमारत में भाग आए। दोनों व्यक्तियों को कर्मचारियों द्वारा तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन दोनों ने दम तोड़ दिया। डीसीपी नॉर्थ ईस्ट लक्ष्मी प्रसाद ने कहा कि 2 आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें पकड़ने के लिए टीमें गठित की गई हैं। उन्होंने कहा कि मकसद और अन्य लोगों की संलिप्तता के संबंध में जांच चल रही है। श्रीराम सेना के संस्थापक प्रमोद मुतालिक ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों सरकारों में हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। प्रमोद मुतालिक ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार आने के बाद से राज्य में हिंदू विरोधी माहौल है। हालांकि जब बीजेपी सत्ता में थी तब भी हिंदू कार्यकर्ता डर के साए में जी रहे थे। राज्य में भाजपा ध्वस्त हो गई है। कांग्रेस नेता मुसलमानों के साथ हैं। मुतालिक ने संवाददाताओं से कहा, उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता नालायक हैं। अगर बीजेपी हिंदू कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होते तो हम बीजेपी का जश्न मनाते। आप क्या तथ्य खोजेंगे? आप कांग्रेस को दोष देते हैं और नाटक करते हैं। उन्होंने उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से पूछा कि जैन पुजारी हत्याकांड में उन्होंने दूसरे आरोपी जो मुस्लिम हैं उनका नाम क्यों नहीं लिया? आपने एक हिंदू आरोपी का नाम क्यों लिया? हम इस मामले को छोड़ने वाले नहीं हैं। हम सबक सिखाएंगे। कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति केवल बड़ी है, कड़ी सजा से क्या तात्पर्य है? व्यवस्था ठीक नहीं है। 1 साल में आरोपी जेल से बाहर आ जाएंगे। प्रमोद मुतालिक ने मांग की है कि यहां उत्तर प्रदेश मॉडल का पालन किया जाना चाहिए और जैन पुजारी मामले में आरोपी व्यक्तियों के घरों को तोड़ दिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि क्रूरता तो क्रूरता होती है और आरोपी कोई भी हो उसका घर तोड़ देना चाहिए। विधानसभा में नमाज को अनुमति देने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य विधानमंडल न तो मक्का है और न ही मदीना। क्या वे सोचते हैं कि यह मक्का या मदीना है? यह एक खतरनाक मानसिकता है। विधानसभा एक पवित्र स्थान है। आप नमाज करने की इजाजत न दें। यह चीज सांप्रदायिक है और हम इसी के लिए लड़ते हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि भाजपा नेता राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर 12 जुलाई को राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिलेंगे। विधानसभा में पत्रकारों से बात करते हुए बोम्मई ने जैन पुजारी मामले, हत्या मामले में और अन्य घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। पार्टी इस संबंध में विरोध प्रदर्शन करेगी और राज्य की स्थिति पर राज्यपाल से मुलाकात करेगी। सरकार ने जैन पुजारी की नृशंस हत्या मामले को लेकर बहुत हल्के में लिया है। लोग इस मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग कर रहे हैं। बोम्मई ने यह भी कहा है कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। बीजापुर शहर में चलकारा अक्टा के राज्याध्यक्ष नारायण स्वामी के नेतृत्व में शहर के सिद्धेश्वर मंदिर से प्रदर्शन शुरू करके जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि राज्य सरकार शक्ति योजना के कारण निजी बस, ऑटो और टैक्सी सहित अन्य निजी वाहन परेशान में आ गए हैं, इसलिए इस योजना को तुरंत बंद करने की मांग की गई। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। पशुपालन मंत्री के वेंकटेशन ने कहा कि राज्य सरकार के समक्ष दूध की कीमतें बढ़ाने का एक प्रस्ताव है। उन्होंने विधान परिषद को सूचित किया कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के साथ चर्चा के बाद जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि
केएमएफ की नंदिनी का अमूल में विलय की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि किसान और दोनों संकट में हैं और दूध की कीमतों में बढ़ोतरी अपरिहार्य है। किसानों, दुग्ध संघों और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए कीमतें बढ़ाई जाएंगी। बढ़ोतरी के बाद 70% किसानों को और बाकी दूध संघों को दिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि कई निजी कंपनियां किसानों से खरीदे गए दूध पर 2 से 3 रुपए प्रति लीटर का भुगतान कर रही हैं। यह दुग्ध संघों को प्रभावित कर रहा है। वेंकटेशन ने कहा, हम उन कंपनियों को विनियमित करने के तरीकों के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि एससी और एसटी समुदाय के किसानों को अप्रैल तक और अन्य को फरवरी तक सब्सिडी का बकाया भुगतान कर दिया गया है। उनका बकाया जल्द से जल्द दिलाने के उपाय किए जाएंगे। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला कांग्रेस ने 1 दिवसीय मौन धरना दिया और रात में बारिश के कारण एक मकान के 2 कमरे ढह गए, परिवार सुरक्षित। विपक्षी भाजपा ने जैन मुनि हत्या मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। ट्रांसफर बिजनेस टिप्पणी पर कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच झड़प। टेक फर्म के सीईओ एमडी की कथित तौर पर पूर्व कर्मचारी ने की हत्या। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।